Welcome to the Sahitya Conclave, a celebration of India's rich literary and cultural legacy. Literature is more than just words. It is a reflection of our identity, our values, and our connection to the world. Through this conclave, we explore how our literary heritage can serve as a soft power, inspiring thought, unity, and progress. On this note, and without further ado, let us begin this conclave. May I now request Shri Rajit Punhani, Secretary Rajya Sabha and CEO of Sansad TV, to deliver the welcome address. आप सबको ये प्रथम साहित्य कंक्लेव में सबका स्वागत है. It's an initiative by Sansad TV, a platform dedicated not just to democracy, but also to the vibrant discourse that shapes our nation's future. At Sansad TV, under the visionary leadership of our esteemed Governing Council, led by the Honorable Vice President of India and Honorable Chairman Rajya Sabha and Honorable Speaker Lok Sabha, we have consistently focused on the fundamental pillars that build a Viksit Bharat 2047, a developed, self-reliant and culturally enriched India. Our Parliament, the temple of democracy, is also a custodian of our heritage, literature, arts, music, sports, culture. At Sansad TV, we have embraced this by curating programs that celebrate these dimensions while providing a platform for emerging talent. This Sahitya Conclave is yet another proactive step in that direction. ये सवाल उठता है कि is this just another version of a lit fest? But at Sansad TV, we try to do it differently. Like our programs, we have serious discussions that are watched by lakhs of people as we provide knowledge, not glamour. Also, we touch upon aspects which are otherwise often neglected, like culture, sports, and literature. So why literature? Because the written word is power. There is an old saying that history is written by the victors. Now the time has come for us to write our own history and tell our own stories. Our lived experiences, our perspectives, our vision for the future must find their rightful place in the world of literature and thought. So we have some sessions on modern India, nationalist reading, on Sahitya, Patrakarikta or Rajniti, and on sports. We have introduced this time a session on sports, which is an often overlooked aspect of national pride. Sports is more than just a competition. It is a testament to a nation's strength, discipline, and resilience. This conclave is also a wonderful opportunity for dialogue and collaboration. The stakeholders gathered here today, each one of you, are nation builders in your own right. Your words, your insights, and your ideas will shape the discourse of tomorrow. I leave you with an anecdote shared by the Air Chief Marshal while he was here in the previous conclave in Sansad TV. He spoke about how strength is not just in firepower, but in the power of thoughts and words. A strong nation is built not only on its military and economy, but also on the strength of its culture, its literature, its history, and its stories. He left us with a powerful message. Serving the nation is not limited to wearing a uniform. One need not join the army or the air force to contribute to nation building. Every writer, every artist, every thinker, and every storyteller who shapes our national consciousness is a guardian of our heritage and a builder of our future. This conclave is a testament to that very idea that through literature, thought, and dialogue, we serve the nation, shape its destiny, and contribute to the vision of a Viksit Bharat 2047. So welcome once again, and I look forward to the enriching conversations ahead. Jai Hind. This session is centered around the theme Bharatiya Sahitya Ki Rooprekha, an outline of Indian literature. And the session will be moderated by Dr. Gautam Chaubey. He is author, assistant professor at Delhi University,
and also anchor of Sunset TV's literary show Likhavat. Let's welcome him with a huge round of applause. आप सबको नमस्कार, आप सबका स्वागत है संसद टीवी की ओर से इस पहले साहित्य संसद में। हमारे साथ मंच पे कई विभूतियाँ हैं। हमारे साथ है प्रोफेसर कुमुद शर्मा जो साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं। आपकी किताब साहित्य के निर्माता और हिंदी साहित्य के निर्माता हिंदी के निर्माता और साहित्य के निर्माता अंबिका प्रसाद वाजपेयी काफ़ी चर्चित रही है। आपको साहित्य श्री सम्मान और भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार भी मिला है। मैम, आपका स्वागत है। धन्यवाद। हमारे साथ मिली ऐश्वर्या हैं। मिली ऐश्वर्या पेंगुइन रैंडम हाउस के अडल्ट पब्लिकेशन डिवीजन की मुख्य हैं। पेंगुइन रैंडम हाउस में जो डाइवर्सिटी हमें इन दिनों दिखती है, अलग अलग भाषाओं से लेखक जुड़ते हैं, नए लेखक जो जुड़ते हैं, उसके पीछे इनकी भूमिका बड़ी अहम रही है। मिली, आपका स्वागत है। इस सत्र का जो शीर्षक है वो है भारतीय साहित्य की रूपरेखा, एन आउटलाइन ऑफ इंडियन लिटरेचर। और हमारे देश के बारे में कहा जाता है कि कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे वाणी। कहना आसान है, लेकिन इसे समझा कैसे जाए? भारतीय साहित्य में जो विविधता है, जो भाषा की विविधता है, इसे हम कैसे समझें? और एक उदाहरण मेरे मन में आता है जिससे मैं बात शुरू करूंगा। पिछले दिनों मैं पुरी गया था और पुरी में एक गुंडीचा मंदिर है। वो मंदिर श्री जगन्नाथ जी की मौसी का मंदिर है। रथ यात्रा में जगन्नाथ जी अपनी मौसी के यहाँ जाते हैं और वहाँ रुकते हैं। और उस मंदिर पर एक कविता लिखी थी 18th सेंचुरी उड़िया पोएट ब्रजनाथ बड़जना ने। कविता जो है वो उड़िया लिपि में लिखी है, जो कि स्वाभाविक है, पर उसकी भाषा अवधी है। ऐसा ही एक उदाहरण राजा रंजीत सिंह के दरबार में नजर आता है। दरबार की भाषा पर्शियन है, साहित्य की भाषा ब्रज है, बोलचाल की भाषा पंजाबी है और लिपि गुरुमुखी है। तो ये जो विविधता है, इसी विविधता को और इस विविधता को समाहित करती भारतीय साहित्य की रूपरेखा को समझने का आज हम इस सत्र में प्रयास करेंगे। और सबसे पहले मैं कुमुद मैम से पूछूंगा, जब भारतीय साहित्य के बारे में हम सोचते हैं तो क्या विचार आपके मन में आता है? कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, जहाँ से आपने शुरू किया गौतम जी, और बड़ा अच्छा आपने उदाहरण दिया। और ये तो हम सब जानते हैं, सब स्वीकार करते हैं, क्योंकि अनेकता में एकता जो हमारे भारत का वैशिष्ट्य है। और जो भारतीय साहित्य है, पहली चीज़ तो भारतीय साहित्य में उसको समझती हूँ कि जो आपकी भारतीय मूल्य संपदा है उसका संवाहक होता है। और जिस आपने कहा कोस कोस पर बदले पानी और चार कोस पर बदले वाणी, ये कहा जाता है हमारे यहाँ। भारत, किसी ने, मुझे एक वाक्य याद आ रहा है, किसने कहा याद नहीं मुझे, कि भारत बहुवचन में है। तो भारत में इतनी सारी भाषाएं हैं, इतनी संस्कृतियां हैं, हम अलग अलग प्रांतों में बसते हैं, हमारा खान पान अलग हो सकता है, हमारे रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, हमारी बोली अलग हो सकती है, लेकिन हम सब एक केंद्रीय दृष्टि की का जो समग्रता बोध है उससे जुड़े हुए हैं। और वो क्या है? वो है हमारा सांस्कृतिक बोध। अगर हम साहित्य की बात करें तो भारतीय रचनात्मकता का एक लंबा इतिहास है। भारतीय साहित्य की रूपरेखा की आप बात कर रहे हैं, एक बहुत लंबा इतिहास उसका, बहुत सुदीर्घ उसकी यात्रा है। और लेकिन उन तमाम भारतीय भाषाओं के बीच हम देखते हैं कि एकात्मता भी है, समन्वयात्मकता है। और वो कैसे बनी है? क्योंकि उसके बीच कोई तो ऐसा सूत्र होगा जो सारी भारतीय भाषाओं को भी जोड़ रहा है, और भारतीय भाषाओं में जो साहित्य लिखा जा रहा है उनके बीच भी जोड़े हुए कुछ ना कुछ तो है। वो ये कि हम जिस विविधता की बात कर रहे हैं वो केवल परिधि पर है, केंद्र तो एक ही है। जैसे मैं इसको और अगर स्पष्ट करना चाहूँ तो मैं इस तरह से कर सकती हूँ कि भले ही हमारा भारतीय साहित्य विविध भारतीय भाषाओं में रचा गया हो, लेकिन हमारे जितने साहित्यकार हैं उन्होंने अपने रचनात्मक स्रोतों की तलाश कहाँ से की है? उन्होंने अपने रचनात्मक स्रोतों की तलाश एक ही जगह से की है, वेद, पुराण, उपनिषद। तो हम सब एक ही तरह की, हमारी जो जीवंत परंपराएं हैं, हमारा जो एक गौरवशाली इतिहास है, हमारे जो मिथक हैं, उनसे हम सब एक ही तरह का नाता महसूस करते हैं, एक ही तरह का जुड़ाव महसूस करते हैं। यही हमारी एकता का आधार है, यही समन्वय का आधार है, यही हमारे सामंजस्य का आधार है। इसीलिए बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी संस्कृतियां होने के बावजूद हम एक हैं। थैंक यू मैम। मेरी आपसे भी यही सवाल रहेगा। वी हैव इन इंडियन लिटरेचर सेंस ऑफ जियोग्राफी, यूनिफाइंग जियोग्राफी, जो मेघदूत में दिखता है, जो महाभारत में दिखता है, जो शिलापदिकरम में भी नज़र आता है।
इसके अलावा वो कौन से बाइंडिंग एलिमेंट्स हैं that give coherence to Indian literature? So Indian literature, you know, as we all know, has so many languages now. You know, it's not. I publish books in English, but in a country like India, where you know there are so many recognized languages, but even since ancient times, whether it was Pali, Prakrit, and you mentioned Awadhi, there are so many languages that have been prevalent. You've had texts. We're still rediscovering a lot of texts and materials, some of which were lost. And now I think there's a manuscript mission also, you know, people are collecting and trying to digitize all these ancient texts. So I think all of this is part of Indian literature, and of course English came more recently, you know, with the British, and it was very interestingly introduced to, you know, as a way to help govern, you know, help develop civil servants and officers, you know, who could speak one language in a very diverse country like India, where every region had different languages. So it was sort of a unifying language across India to help in administration. But I personally feel, and you know, history also shows that English actually helped to also throw the British out of India, because people got educated, they traveled outside India. You know, we had so many of our Indian freedom fighters becoming lawyers and barristers and coming back with all the ideas that they saw in the West and learnt about, whether it was freedom, liberty, justice, and you know, they used all of that to fight the British and drive them away from the country. So in terms of English and its place in Indian literature, I think even though it is relatively newer as compared to other languages like Kumaji was also mentioning, it has been a sort of a unifying factor, and currently it has the largest readership in India as well. You know, English is the largest, and then it's Hindi and other languages. So even now there are a lot of people who read in English. There are institutes and colleges that, you know, teach in English. So it is a great way to spread ideas and stories across India. Stories originally written in English, and also a lot of the translations that we are doing from various languages into English. धर्मेंद्र जी का जन्म पटना में हुआ, और वो राजकमल प्रकाशन के पब्लिशर हैं, एडिटर हैं। इसके पहले उन्होंने प्रभात खबर और हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहे, और रेयर बुक्स का कलेक्शन उनका शौक है। धर्मेंद्र जी, आप रेयर बुक्स कलेक्ट करते हैं, और मुझे लगता है आप हर हफ्ते दिल्ली के पुराने बाज़ारों में जाके दुर्लभ किताबें एकत्रित करते हैं। प्रिंट के आने के बाद किताबों का सर्कुलेशन, किताबों को पढ़ने की परंपरा, हम प्राइवेट रीडर बन गए जब किताब छपने लगी। किताब पहले हम लोग सामूहिक तौर पे पढ़ते थे, एक साथ महाभारत पढ़ते थे, रामायण गाते थे। हम प्राइवेट रीडर बन गए, कई नए विषय आए, लिखने की पद्धतियाँ बदली। क्या हम आज के प्रिंट कल्चर में, प्रिंटेड किताबों में, प्रिंट के आने के पहले की जो शैलियाँ थी, जो विषय थे, जो फॉर्म्स थे, क्या उनका कुछ वेस्टेजेस, कुछ उनका अंश हम देखते हैं? बिल्कुल। आप सब लोगों को शायद याद भी होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता है, झांसी की रानी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो ये हर बोले जो हुआ करते थे प्रिंट कल्चर के ठीक पहले, वो तरह तरह के एपिक, वीरों की गाथाएं, और उनसे भी पहले लव और कुश जो रामायण में आते हैं, उनके नाम से कुशीलव नाम की एक जाति ही हुआ करती थी जो रामायण गागा करके सुनाती थी गाँवों में। तो प्रिंट के पहले तो यही लोग थे, और इस तरह की परंपराएं देश के अलग अलग हिस्सों में आपको देखने को मिलेंगी। और श्रुति जिसे कहते हैं कि सुन कर के याद रखना और सुना करके याद दिलाना, इसकी बहुत लंबी परंपरा रही है। जहाँ ये दोनों चीज़ें मिलती हैं प्रिंट में, तो मैं आपको भिखारी ठाकुर, बिहार के भोजपुरी में लिखने वाले एक आदमी थे जो बहुत मुश्किल से लिखना जानते थे, और प्रिंट कल्चर के ठीक पहले ऐसी चीज़ों के साथ प्रदर्शन एक ज़रूरी चीज़ थी, क्योंकि आपको एक ऑडियंस को सुनाना है। भिखारी ठाकुर के नाटकों में और नाटक देखने वालों के तादाद अगर आप उनके बारे में सोचेंगे तो आज कल्पना नहीं की जा सकती है कि सिर्फ नाम सुन करके कि उनका नाटक कहीं होने वाला है, तमाशा बोलते थे। लिटरली 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार, 1-1 लाख लोगों की भीड़ जुटती थी। वो चीज़ प्रिंट के आने के बाद बदल गई है। लेकिन जैसा कि मैंने सुभद्रा कुमारी चौहान का ही उदाहरण दिया, मुझे तुरंत याद आया
कि वो चीज़ें कैसे ट्रांसफॉर्म हुई छपे हुए फॉर्म में। बच्चन जी ने बहुत सारी उत्तर प्रदेश के लोकगीतों के फॉर्म को लेकर के बहुत सारी कविताएं लिखी, जैसे उनकी एक बहुत मशहूर कविता है सोन मछली। ऐसे आपको तमाम चीज़ें दिखेंगी। जी मैम, राष्ट्रीय साहित्य या भारतीय साहित्य की जब हम बात करते हैं, किसी भी देश के साहित्य की बात करते हैं, व्हेन वी स्पीक ऑफ नेशनल लिटरेचर वी स्पीक ऑफ अ कैनन। उस कैनन में उस देश की प्रतिनिधि कृतियाँ होती है, प्रतिनिधि लेखक होते हैं। मुझे कई बार लगता है कि जो आलोचक और जो विचारक हैं, जो थिंकर्स हैं, उनकी भूमिका पर उतना बल नहीं दिया जाता है। और आलोचना की एक लंबी परंपरा हमारे देश में रही है। भामा है, आनंदवर्धन है, राजशेखर हैं। आलोचना की एक बड़ी परंपरा 9th-10th सेंचुरी में कश्मीर में भी पनपी, जो अगली 4-5 शताब्दियों तक और भी फलीभूत हुई। आपने हिंदी के निर्माता शीर्षक से 2 खंड में किताब लिखी है। आप इनकी भूमिका को कहाँ देखती हैं? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि केवल आलोचकों की भूमिका ही नहीं, मैं कहूँगी स्वयं साहित्यकारों ने भी इसको परिभाषित किया है। हमारे चिंतक हैं, मनीषी हैं। आपने कश्मीर का जिक्र किया, तो कश्मीर से तो पूरा भारतीय काव्यशास्त्र का उद्भव ही आप देखिए वहाँ से होता है। तो मैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग से जो प्रसंग है उनके माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट करूँगी। जब मैं राष्ट्रीय साहित्य, क्योंकि राष्ट्रीय साहित्य जो टर्म जो है बहुत से लोगों ने लिया है, लेकिन जब साहित्य में राष्ट्रीयता का समावेश हम करते हैं, उस दृष्टि से जब देखते हैं, तो पहले देखना होगा कि क्या मतलब है इसका। तो राष्ट्रीयता की जब बात आती है तो मैं ये समझती हूँ कि राष्ट्रीय चेतना जो है वो क्या है। राष्ट्रीय चेतना का मतलब है अपने देश के साथ आपका एक मानसिक जुड़ाव, एक मानसिक संसक्ति, जिसमें कि देश के कल्याण और उन्नयन की भावना सन्निहित है। हर व्यक्ति का अपने देश के साथ एक रिश्ता होता है। तो हमारा अपने देश के साथ जो रिश्ता है, हमारे भावों का जो रिश्ता है, वो हमारा राष्ट्रीय आचरण है। और वही जब कविता में व्यक्त होता है तो वो कविता में राष्ट्रीय चेतना के रूप में देखा जाता है। तो राष्ट्रीय चेतना का संवाहक हो जाती है यही चेतना जो है। तो इसको तरह तरह से अब कैसे वो राष्ट्रीय चेतना की निर्मिति होती है, किस तरह से, उसके बहुत अच्छा जिक्र जो है निर्मल वर्मा ने किया है। और एक बचपन की घटना का प्रसंग उन्होंने कहीं पर लिखा है कि वो जब बच्चे थे तो वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और अपनी माँ के साथ थे, और वो ट्रेन जो है एक पुल के ऊपर से गुजर रही है, नीचे नदी है, और उनकी माँ, वो सो रहे थे ऊपर की बर्थ में, उनकी माँ ने उनको सोते हुए से जगाया, झंझोड़ करके जगाया और उनकी हथेली पर पैसे रखे, कहा कि इसको नदी में फेंक दो। और वो उस घटना का जिक्र करते हैं अपने शब्दों में, शायद मुझे याद आ जाए। वो कहते हैं कि ये शाम, ये पुल, ये नदी, पहाड़ और पुल के ऊपर से, पुल के पास रेत का ढूं, एक अनाम नदी, और ये सब शायद, वो कहते हैं कि मेरा प्रेम प्रसंग देश के साथ यहीं से शुरू हुआ। और वो कहते हैं कि ये पत्थर, नदी, पहाड़, ये इन अपने आप, इनका जो अंतर्संबंध बनता है, ये अपने आप एक पवित्रता का गौरव स्थापित कर लेते, एक आध्यात्मिक संवेदना ग्रहण कर लेते हैं। और क्या ये महान संयोग है कि प्रकृति के इतने आत्मीय उपकरणों ने हमारे भीतर देशभक्ति की उस भावना को जन्म दिया, जो एक तरह की संकीर्ण छद्म धर्मनिरपेक्षा जो कहते हैं, उससे बिल्कुल अलग है। तो इसी तरह की बात रामचंद्र शुक्ल करते हैं। रामचंद्र शुक्ल का एक प्रकृति वर्णन पर उनका एक निबंध है, लेकिन उसमें वो कहते हैं कि राष्ट्र प्रेम का मतलब क्या है। फिर वो कहते हैं प्रेम ही तो। फिर वो आगे लिखते हैं कि इसको स्पष्ट करते हैं कि कैसा प्रेम। वो कहते हैं जिस व्यक्ति को अपने यहाँ की नदियों से, पहाड़ों से, वृक्षों से प्रेम नहीं है, वो राष्ट्रीय कैसे हो सकता है। तो इसको आप इस तरह से विस्तार दे सकते हैं कि राष्ट्रीयता जब साहित्य में आती है तो वो भारतीय परिवेश को लेकर के आती है, और जहाँ भी भारतीय परिवेश से जो आपका एक आत्मिक लगाव है, वो राष्ट्रीय चेतना के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और राष्ट्रीय चेतना कविता में या साहित्य में उस तरह से भी आती है कि अगर परिवेश की विशुद्धता में आप एक आत्मीयता नहीं स्थापित कर पा रहे हैं, उसके निरर्थक होने की पीड़ा भी आपके भीतर है, तो वहाँ पर भी राष्ट्रीय चेतना है। तो मैं इसको इस तरह से देखती हूँ।
राष्ट्रीय चेतना या देश को जोड़ने वाली तमाम चीज़ें, चाहे वो नदियाँ हो, चाहे वो रेल हो, चाहे फिल्मी गाने हैं, सारी चीज़ें साहित्य में दर्ज होती रहती हैं। दर्ज होता है हमारी प्राचीन परंपरा भी, एंशिएंट परंपरा, और जो क्लासिकल लिटरेचर है हमारे देश का। और क्लासिकल लिटरेचर को अंग्रेज़ी के पब्लिशर्स ने बहुत अच्छे से संजोया है, मैं कहूँगा। हमारे पास क्ले संस्कृत लाइब्रेरी का एक उदाहरण है, मूर्ति क्लासिकल लाइब्रेरी का उदाहरण है, खुद पेंगुइन का एक क्लासिक्स इम्प्रिंट है, और यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय के कई छात्र यहाँ बैठे हैं। हमारा पहला परिचय कालिदास का उसी के थ्रू होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम का, सुधा चंद्रन का जो अनुवाद, चंद्राराजन का जो अनुवाद है, द लूम ऑफ टाइम, वो पेंगुइन क्लासिक्स है। मिली, मैं चाहूँगा कि आप जो आपके क्लासिक्स इम्प्रिंट है और जो क्लासिक्स आप ट्रांसलेट करवाती हैं, और क्या भूमिका उसकी देखती हैं आप राष्ट्रीय साहित्य के प्रोत्साहन में और प्रिजर्वेशन में। एक जो एक्यूजेशन लगता है कि कई बार क्लासिक्स में हम विदेशी अनुवादकों को रखते हैं, और जो बंकिम के शब्दों में कहूँ तो अनुवाद तो बेहतर करते हैं, लेकिन उस साहित्य की आत्मा को नहीं समझते हैं। तो आपको क्या लगता है? I think this is a mixed bag. You know, I do want to start by saying that Penguin Classics program is very, very dear to us. It's very precious, and even though we don't make a lot of money, it's not possibly the most profitable imprint that I run, but it is a very special one. It is very prestigious. It is very close to our heart, and we've been investing a lot of energy into it for several years. और मुझे लगता है कि things are changing. I think when maybe I started out in publishing about 19-20 years ago, then there were maybe more international translators, and we would get maybe more high quality work from them. But things are changing now. I think there are a lot of translations of very good quality from various languages happening into English. And we recently we announced the title Heart Lamp, which was written by Manu Mushtaq in Kannada and translated by Deepa Bhashti, which has been longlisted for the Booker, and this is our third book recently that has been longlisted for the Booker Prize. So I think things are changing. Even in the West is noticing the quality of work that Indian translators are doing. Coming back to classics, yes, I think the Murthy Library just completed 10 years, and even the Clay Library has been doing a lot of good work. We also have been trying to put together a list that will stay on. I think this is an evergreen list. I feel that it is great for all age groups and generations, and it also preserves a lot of these very special books for the future. So we keep on investing into it. We've done translations of Mahabharata. We have so many works by Vivek Debroy. He translated the Mahabharata, Ramayana. We have the Bhagavatam, Puranas that we are doing. So a lot of, I think, such important works are being made available to the younger generation, the current generation, because like I said, English does have a large readership. And when we publish, we don't publish only for institutions, colleges or libraries, we do publish for a large audience. So our distribution, reach, our packaging, pricing, everything is keeping that in mind. So therefore, I think this is a very special list for us. There are a lot of new books in the offing also, and we will keep on publishing more in this. We look forward to those. Yes. धर्मेंद्र जी, जो हमारी राष्ट्रीय साहित्यिक चेतना है या भारतीय साहित्य की जो एक रूपरेखा है, वो हिंदी की और तमाम भाषाओं में आने वाली पत्र पत्रिकाओं में भी उसे तय किया गया। मैं सोच रहा हूँ प्रेमचंद के हंस के बारे में, जिसमें एक कॉलम निकालते थे जिसका नाम था मुक्त मंजूषा। मुक्त मंजूषा में भारत की तमाम भाषाओं में जो उस दौर में किताबें छप रही थी, जो बेहतरीन किताबें छप रही थी, कहानियाँ या लेख छप रहे थे, उनका अनुवाद करवा के वो एक पूरे कॉलम में छापते थे। ये तेलुगु से, ये तमिल से, ये पंजाबी से, ये गुजराती से। तो प्रयास इसके होते रहे हैं। जो भारतीय साहित्य का कैनन बना या जो एक रूपरेखा तैयार हुई, जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें इन लिटिल मैगजीन्स की भूमिका को आप कहाँ देखते हैं? बेशक लिटिल मैगजीन्स जिनको हम कह रहे हैं, इसको और अच्छे से कहें तो ये कहें कि व्यक्तिगत प्रयासों से जो हो रहे थे पूरे देश में, आप उत्तर दक्षिण पूरे पश्चिम कहीं भी देखें, जैसे मुझे तुरंत अभी याद आ रहा है, खुद बंकिम बाबू ने बंग दर्शन नाम से एक पत्रिका शुरू की थी। प्रवासी आपको याद आएगा। हिंदी में सरस्वती
और उसके बाद भी बहुत सारी पत्रिकाएं आई। सरस्वती को तो ये श्रेय है कि जो आधुनिक हिंदी साहित्य जिस रूप में आज हम देखते हैं उसको लिटरली गढ़ने में उन्होंने बहुत भूमिका निभाई, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और अगर आप प्रतिबंधित साहित्य देखें, चूँकि भारतीय साहित्य और राष्ट्रीय संदर्भ में बात हो रही है, तो मैं अभी हाल ही में जालियांवाला बाग से रिलेटेड कुछ प्रतिबंधित साहित्य देख रहा था जो हिंदी में लिखे गए हैं। तो ये सुखद आश्चर्य हुआ मुझे ये देख करके कि जालियांवाला बाग की घटना होने के तुरंत बाद से लेकर उसके 10-12 साल बाद तक हिंदी में दर्जनों किताबें आपको मिलेंगी, जैसे कविताओं के संकलन, उन पे लिखे गई नौटंकियाँ, नाटक या और भी तरह की चीज़ें। रिएक्शन था उसमें, और उसमें राष्ट्रीय चेतना। एक कविता उसमें है जिसमें जो कवि है, कवि महत्वपूर्ण यहाँ नहीं है, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों को कवि के रूप में कभी जाना नहीं गया और वो इसके लिए लिख भी नहीं रहे थे। अंग्रेज़ों को वो जालिम, मक्कार और भी आप कह सकते हैं कि वो गाली दे रहे थे, इतना तीखा गुस्सा था। और उस कविता के अंत में वो कहते हैं कि लेकिन अब हम लोग जाग गए हैं और हमने अपना खून बहाया है, तो अब हम सोने वाले नहीं हैं, हम आज़ादी को लेकर के रहेंगे। घटना तो पंजाब में हुई थी और आफ्टर ऑल मैंने हम ये समझ सकते थे कि उसका एक राजनीतिक उसकी प्रतिक्रिया देश भर में होती, वो तो तब भी समझ में आती थी। लेकिन ये ऐसे ऐसे लोग, जैसे उसमें किसी का नाम है मुक्तबीर, अब ये वाकई जो लिख रहे थे उनका अपना नाम होगा कि नहीं, श्री परंतप, इस तरह के नामों से उन लोगों ने कविताएं लिखी हैं। और वहाँ होने वाली छोटी घटनाओं का, जैसे छोटी इसलिए कह रहा हूँ कि वो जैसे उसमें एक औरत का जिक्र बार बार आता है जिसका पति मारा गया था जलियांवाला बाग में, और लगता है कि उस समय वो घटना बहुत महत्वपूर्ण रही होगी, क्योंकि वो औरत अपने पति की लाश के साथ पूरे रात जलियांवाला बाग के मैदान में ही रही। बाद डर के मारे कोई आ भी नहीं रहा था कि बॉडी वगैरह ले जाएं। तो उसके दर्द को बार बार याद किया है लोगों ने, और हिंदी में लिखने वालों ने। ये मुझे थोड़ी हैरत की बात लगी। दूसरी भाषाओं में भी ऐसा मिल सकता है अगर खोजा जाए तो आप पत्रिकाओं की बात पूछ रहे थे, तो आप देखेंगे सरस्वती में भी आप देखेंगे, आपको राष्ट्रीय चेतना की कविता, बहुत सारे हमारे सारे लेखक, मुझे तो ये लगता है कि स्वतंत्रता आंदोलन जो है वो अगर एक स्तर पे ज़मीन पर लड़ा जा रहा था, उतना ही पत्र पत्रिकाओं में भी लड़ा जा रहा था। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि हमारे सारे स्वतंत्रता सेनानी जो थे उसमें से सबसे ज़्यादा लोग पत्रकार भी थे, वो लेखक भी थे। आप किसी का नाम ले लें, मैंने जिन्होंने सीधे भागीदारी नहीं की थी आप उनका भी नाम ले सकते हैं, और उनका साहित्य इन्हीं छोटे छोटे पत्र पत्रिकाओं में आया। जी हम बात कर रहे थे। जी 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 बिल्कुल। ये बात जो है किसी विदेशी ने ये लिखी कि जो स्वाधीनता आंदोलन के दौर के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के साथ के जो अखबार थे उसके बाद की, उसके लिए कहा गया कि वो देखने में बहुत साधारण है, लेकिन वो वीर काव्य की तरह से अपना असर दिखाते हैं, और वो सेफ्टी वॉल्व की तरह से काम करते हैं जो सावधान करता है आपको, खतरे के प्रति आपको सजग करता है, चेतावनी देते हैं। ये बात कही गई। मतलब मैंने कहा तो मुझे एक चीज़ और याद आई, पीर अली 1857 में जिनको फांसी हुई पटना में, वो किताबें बेचते थे, और वो मेले जो लगते थे आसपास, जैसे सोनपुर में जानवरों का मेला, उसमें घूम घूम करके वो किताबें बेचते थे, गीतों की छोटी छोटी चैप बुक आप उनको कह सकते हैं, वो बेचा करते थे। पत्रिकाओं के साथ भी इसी तरह की बात थी। हम बात कर रहे थे मैम कल हम लोग ये कि राष्ट्रीयता जो है, जो नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस है, वो आज़ादी के पहले के दौर का जो साहित्य था उसका सेंट्रल एक्सेस था। लगभग सारे साहित्यकार राष्ट्र की भावना से उत्प्रोत थे, जेल भी गए। अब कई बार ये कहते हैं कि आज़ादी तो मिल गई, जो आधुनिक साहित्य है उसमें राष्ट्रीयता की भावना की क्या अहमियत है? स्वतंत्रता के बाद के साहित्य की बात कर। जी देखिए, ये बहुत ही भ्रम है लोगों को कि आज़ादी के बाद के साहित्य में राष्ट्रीयता नहीं है या राष्ट्रीयता की ज़रूरत क्या है। ये बहुत सारे लोग मतलब इस तरह की बात करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। राष्ट्रीयता कभी भी व्यतीत मूल्य नहीं हो सकता है, और राष्ट्रीय दायित्व साहित्यकारों का ऐसा दायित्व है जो कभी, राष्ट्रीय दायित्व जो
नहीं महसूस करता वो नहीं, उसको नहीं लिखना चाहिए। तो ये मैं मानती हूँ कि कुछ कारणों से राष्ट्रीयता शब्द जो है स्वाधीनता आंदोलन के बाद के साहित्य में उतना प्रेरक नहीं रह गया, लेकिन राष्ट्रीयता अनाम और अप्रत्यक्ष रूप में सामने आती है। और कैसे आती मैं आपको बताऊं, आज़ाद हो गया देश, गिरजा कुमार माथुर की कविता आती है, 15 अगस्त, आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। यहाँ से शुरू करके आप तमाम कवियों को देखिए, कहानीकारों को देखिए, उपन्यास आप देखिए, आप कैसे कह सकते हैं कि राष्ट्रीय चेतना नहीं है वहाँ पर? तो राष्ट्रीय चेतना वहाँ भी है। वहाँ भी आज़ादी के बाद के जो साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, वो देश के प्रति अपना लगाव महसूस करते हैं, देश के साथ उनका भी मानसिक जुड़ाव है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है राष्ट्रीय चेतना की सामयिकता। सामयिकता से आशय देश की तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियाँ, और इसके साथ आज़ादी के बाद का साहित्य भी पूरी तरह से सांस्कृतिक बोध से जुड़ा हुआ साहित्य है। मैं जिक्र करना चाहूँगी अज्ञे का, निर्मल वर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, पंडित विद्यानिवास मिश्र का, विष्णुकांत शास्त्री का। आप कैसे कह सकते हैं कि राष्ट्रीय दायित्व नहीं का निर्वाह इन्होंने नहीं किया? आप उनको पढ़िए। मिली, हम जो उदाहरण ले रहे हैं ये हिंदी से है और आप अंग्रेजी वाली हैं, एज एन इंग्लिश पब्लिशर, और ये कहा जाता है कि भारतीय भाषाएं जो हैं वो भारतीय जनमानस की अभिव्यक्ति की स्वाभाविक माध्यम है। अंग्रेजी को लेके थोड़ा एक संशय बना रहता है, द सेंस ऑफ डाउट। हाउ डू यू सी इंग्लिश चैम्पियनिंग इंडियन सेंटिमेंट्स? I think the books that we publish, I focus on local publishing in India. So the voices that we publish are of Indians. So they might be using English as a medium to share their ideas and stories, but it is all rooted in Indianness. What they have experienced, they have seen from various parts of the country. So I don't think it is fair to say that, English lags behind in any way. In fact, we publish writers from all across India, from various states, and they all have been raising issues of concern from their region. तो वो माध्यम इंग्लिश का है, बट जो स्टोरीज़ हैं वो तो उनके एक्सपीरियंसेस और उनके इश्यूज़ के बारे में ही है. And even, and for that matter, we were talking about freedom fighters and all these magazines, whether it's Kesari or Mahatma Gandhi, all of them, most of the freedom fighters, they used to write actually a lot. Pamphlets and papers and in the magazines, and a lot of it is also in English. So I think right from before the freedom of India, even later, there is a lot of writing available in English which talks about the causes of Indians, and it's, I think, definitely a part of the whole canon of work, whether it is on nationalism or national integration or awareness of various problems in the country. तरवीन जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्या हमारे साहित्य ने जो एंशिएंट इंडिया है या अर्ली मिडिवल इंडिया है, उसके साथ जस्टिस किया, उसके साथ हमने, और इन दिनों खासकर जब हम देखते हैं, चाहे अंग्रेज़ी की किताबें हों चाहे हिंदी की किताबें हों, हिस्टोरिकल नॉवेल्स या हिस्टोरिकल राइटिंग्स के प्रति क्या रुझान है? ऐतिहासिक उपन्यास आप कह रहे हैं तो हर समय में लिखे जाते रहे हैं। अब ये है कि इतिहास को हम कैसे बरतते हैं और इतिहास को क्या समझते हैं। अगर इतिहास सिर्फ घटनाओं का तारतम्य है तो उस हिसाब से तो नॉवेल में गुंजाइश कम बनती है या साहित्य में गुंजाइश कम बनती है। लेकिन अगर इतिहास के मर्म को आप देखें तो आपको लगातार दिखाई देगा। मैं वो किताब हम ही ने पब्लिश की है, शमसुर रहमान फारूकी की एक छोटी सी किताब है, कब्ज़े जमा। संयोग से उसकी पृष्ठभूमि में दिल्ली भी है और वो अलग अलग टाइम में ट्रैवल करता है उसका किरदार, जैसे दास्तान में हुआ करता था वैसे। तो वो पूरा ज़माना उसमें सामने आता है। गो कि उन्होंने उसमें किसी सुल्तान का, किसी बादशाह का प्रमुखता से जिक्र नहीं किया है। एक सिपाही है, उसको अपने लड़की की शादी करनी है और वो राजस्थान की तरफ का है, उसको जाना है और वो लौटते समय जाने के क्रम में रास्ते में छीन लेते हैं सामान उसका, डकैत सब। तो वो फिर एक तवाइफ से पता चलता है उस तवाइफ के बारे में उसको कि वो बहुत उदार किस्म की है और वो कुछ पैसे वगैरह हमें दे सकती है मांगने पे, और वो फिर उसका घर खोजता हुआ जाता है। कहानी का सूत्र ये है और इस सूत्र से आप
एकदम इतिहास का एक पूरा कालखंड कि उस कालखंड में ये पूरा इलाका कैसा था, यहाँ का कल्चर कैसा था, यहाँ का जनजीवन कैसा था, वो सब इतने रोचक ढंग से आता है कि एक बार में ही आप पूरी किताब पढ़ेंगे, ये मैं दावा कर सकता हूँ। हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा भी हो। वैसे ही एक किताब अभी आई है, मुझे नाम याद नहीं है, वो किताब खिलजी के सेनापति मलिक काफूर के बारे में आई है। अब जो इतिहास को देखने की दृष्टि हम लोगों के यहाँ है, और ये अच्छा भी है कि हम लोग इतिहास को एकदम हमेशा अपने पास खींच करके रखते हैं, वो हमारे लिए बहुत जीवंत चीज़ है। लेकिन मलिक काफूर पे जिन्होंने नॉवेल लिखा है, और अभी उस उपन्यास को एक पुरस्कार भी मिला, तो जो निर्णायक थे उनसे मैंने पूछा कि आपने क्या सोच कर के ये इस किताब को ये दिया है, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो इतिहास वगैरह की बात जाने दो, मैंने ये सोचा ये बात अभी अभी उठ करके आ रही है, तृतीय लिंग की बात होती है, थर्ड जेंडर की बात अभी होती है। एक ऐसा आदमी जो इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण पद पर था, वो ताकतवर आदमी था, लेकिन उसके अपने स्ट्रगल को देख करके मुझे लगा कि ऐसे तो कभी देखा ही नहीं गया होगा। वो सेनापति था, वो किसी की गर्दन उड़ा सकता था, उसने लड़ाइयाँ लड़ी, वो राजा बना सकता था, राजाओं को गद्दी से उतारने में उसकी भूमिका होती, लेकिन उसको क्या मिला उससे? उसको अपने जीवन में कुछ नहीं मिलता है, उसका अंत बहुत ट्रेजिक हुआ। तो उन्होंने कहा कि ऐसे भी इतिहास को देखा जा सकता है, एक पात्र को वो उपेक्षित की तरह से देखते हैं कि आप ताकत हासिल करके भी आप उपेक्षित रहे। तो इतिहास को बहुत तरह से देखा जा सकता है। मैम आप साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष भी हैं और अपनी तरह की अनूठी संस्था है पूरी दुनिया में। 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में है, 2 और आपने उनमें जोड़ रखा है। 24 भाषाओं का जिम्मा आपके ऊपर है, उनके साहित्य को पोषित करने का। क्या भूमिका साहित्य अकादमी की रही ऐतिहासिक तौर पे 50 के दशक से अब तक, और 21वीं शताब्दी में आज के दौर में उस भूमिका में क्या बदलाव आपको नज़र आता है? देखिए, साहित्य अकादमी की जब स्थापना हुई थी तो इसका उद्देश्य यही था कि भारत की जो विभिन्न भारतीय भाषाएं हैं उनके बीच में एक समन्वय स्थापित हो सके, और जो तमाम गतिविधियों के माध्यम से ऐसा हो। बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हैं यहाँ पर। अगर मैं आज की बात करूँ तो उसमें ये है कि बहुत सारी वहाँ योजनाएं चलती हैं। देखिए, वहाँ पे पुरस्कार है, प्रोत्साहन है, प्रसार है, प्रकाशन है, अनुवाद है, और पुरस्कार भी कई तरह के हैं। एक तो मुख्य पुरस्कार है, युवा पुरस्कार है, बाल साहित्य पुरस्कार है, अनुवाद के लिए पुरस्कार है, इसके अलावा भाषा सम्मान है। और भाषा सम्मान इसलिए मैं ज़्यादा फोकस करके बात करना चाहूँगी कि आप 22 भारतीय भाषाओं को जो है हम 8वीं अनुसूची में लेते हैं, मान्यता प्राप्त है, और हम 24 देते हैं, लेकिन उसके अलावा भी भारत में बहुत सारी भाषाएँ उपभाषाएँ हैं। तो ये जो भाषा सम्मान है, ये हर वर्ष 4 भाषा सम्मान दिए जाते हैं। 2 जो मान्यता प्राप्त हैं, उसमें जो मध्यकाल पर काम कर रहे हैं, 2 ऐसी हैं जिनको मान्यता नहीं मिली है और वो बोली जाती हैं, 24 में नहीं है वो। तो ऐसे लोगों को, चाहे वो उन्होंने अनुवाद किया हो, चाहे उन्होंने कोई उत्कृष्ट रचना लिखी हो, तो उनको भी पुरस्कृत किया जाता है। तो पुरस्कार के माध्यम से एक प्रोत्साहन है, और लगातार पूरे साल भर वहाँ कार्यक्रम चलते हैं। और साहित्य अकादमी साहित्यकारों का घर है, और धीरे धीरे हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वहाँ पर उसको और बड़ा दायरा मिल सके। अभी जो है फेस्टिवल होने वाला है, 6 दिन तक जो चलने वाला है, 7 से 12 तक जो है, उसमें पूरे देश भर से लोग आते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान भी। प्रवासी साहित्य पर भी इस बार हमारा एक पूरा सत्र हमने रखा है। इसको हमने बहुत सारी नई चीज़ें उसमें जोड़ी हैं कि इससे पहले विकलांग विमर्श, उस पर भी हमने एक सत्र रखा था। इसके अलावा और ख़ास तौर पर युवाओं पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। विकसित भारत की जो परिकल्पना हमारी है, उसमें साहित्य की भूमिका को आप कैसे देखती हैं? ये सवाल आप लोगों से भी है मेरा। विकसित भारत का जो लक्ष्य सामने है, उसमें साहित्य की भूमिका बहुत बड़ी हो सकती है। हमारे शीर्ष नेतृत्व में जो 5 प्रण लिए हैं, उन प्रण को पूरा करने में कि गुलामी के हर दंश से आपको मुक्ति मिले, आपकी जो विरासत है उसको आप कैसे सुरक्षित कर सकें, कैसे उसके साथ आप साझा करके चलें आप, और हर नागरिक के भीतर जो है कर्तव्य की भावना पैदा हो,
ये सारी चीज़ें आप साहित्य के माध्यम से बिल्कुल लोगों तक पहुंचा सकते हैं। साहित्य, बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहित्य क्या है, साहित्य यथार्थ है, समाज का दर्पण है, केवल समाज का दर्पण है। साहित्य केवल समाज का दर्पण नहीं है, मैं यह कहना चाहूँगी। साहित्य आगे की संभावना भी है। साहित्य एक सही जो भाव दृष्टि होती है उसका रूपायन भी करता है, केवल फोटोजेनिक चित्रांकन नहीं है। यथार्थ की निर्मिति के साथ नैतिकता उसके साथ जुड़ी हुई है। तो वो विकसित भारत का लक्ष्य आप कैसे पूरा कर सकते हैं, कैसे आप साहित्य को जोड़ सकते हैं? हमारी सांस्कृतिक प्रक्रिया में राष्ट्रीय, सामाजिक, मानवीय सरोकारों की जो भूमिका रही है उससे आपको साहित्य को जोड़ना पड़ेगा और विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में आपको बहुत बड़ी सहायता मिलेगी इससे। धर्मेंद्र जी, एनबीटी के ऐसे प्रकाशकों का कुछ प्रयोजना रही है जहां वो भारतीय साहित्य की भाषाओं से अनुवाद करवाते हैं। पेंगुइन भी ढेर सारे ट्रांसलेशंस कमीशन करता है। एनबीटी की एक विशेष योजना थी जिसमें जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जी आदान प्रदान तो है, एक विशेष परियोजना हाल में लॉन्च हुई थी जिसमें जो लेस सेलिब्रेटेड अनसंग हीरोज थे हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट के, उनके ऊपर जीवनियाँ लिखवा रहे थे और सरकार ठीक ठाक फंड दे रही थी और कई अच्छी किताबें आई। पुस्तक मेला से मैंने भी कुछ किताबें ऐसी खरीदी हैं। आप कैसे देखते हैं भूमिका साहित्य की? मैं मैम की बात में थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा। साहित्य की राष्ट्रीयता मेरी समझ से राजनीतिक राष्ट्रीयता से ज़्यादा बड़ी संकल्पना है। और आप देखें, जो विरासत बचाने की बात मैम ने जैसे की, हमारी विरासत क्या है, विरासत को पहचानना भी एक चीज़ है, तभी आप उसको बचाएंगे। साहित्य का ही उदाहरण मैं लूँ मैम, जैसे गांधी जी को जो प्रिय भजन था वैष्णव जन, जो दूसरे की पीड़ा जानता है। चंडीदास ने कहा सवार उपन मानुष सत्य। बाद में टैगोर कहते हैं, भारत को परिभाषित ही किया उन्होंने महामानवेर सागरेर तीरे कह के। तो हमारी राष्ट्रीयता यहाँ तक की है और इस विरासत को हमें बचाना है। मैं समझता हूँ कि एक सच्चा साहित्यकार यही करता है और इस तरह से हम अपने लिए महत्वपूर्ण साहित्य को देख सकते हैं। दूसरी बात जो आपने कही अनुवादों वाली, अनसंग हीरोज़ की, तो संयोग से उसमें हमारे गांव के एक क्रांतिकारी थे, उनकी जीवनी भी प्रकाशित हुई है। उनका काम बड़ा था और उनकी विशेषता ये थी, उनका नाम था राम विनोद सिंह। वो बिहार के थे, मैं बिहार से आता हूँ। वो बिहार में विधायक भी रहे एक बार आज़ादी के बाद। राम विनोद सिंह शुरुआती दौर में अनुशीलन समिति से जुड़े थे और बाद के दिनों में उनका जुड़ाव गांधी जी से हुआ और गांधी जी को उन्होंने प्रस्ताव दिया था, वो के.एम. मुंशी के भी करीब रहे, कि आपके रास्ते से कुछ नहीं होने वाला, आप हम लोगों का ग्रुप ज्वाइन कीजिए, मतलब क्रांतिकारियों का ग्रुप। तो गांधी जी ने उनको कहा कि अगर तुम्हारी तरह के 100 युवक भी हमको मिल जाएं तो मैं अहिंसा के रास्ते भी देश को आज़ाद कराऊंगा। उनकी जीवनी उसमें प्रकाशित हुई है और ऐसे बहुत सारे लोगों की जीवनियाँ उसमें प्रकाशित हुई हैं। तो इतिहास के उस पक्ष के बारे में हम उससे जान सकते हैं। उसमें कमियां कुछ रही होंगी, लेकिन वो कमियां इतनी बड़ी नहीं है कि उस महत्वपूर्ण काम को अनदेखा किया जाए। उससे अपने इतिहास के बहुत सारे ओझल पक्ष के बारे में हम लोग जानते हैं, जान रहे हैं और ये कोशिश और आगे बढ़नी चाहिए। एक अहम सवाल है जो हम सबके सामने है, वो सवाल एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और कई बार ये कहा जाता है कि अब तो एआई का दौर है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। शायद कोई ये भी कह डाले कि प्रकाशकों की ज़रूरत नहीं है। एआई की इस चुनौती को या एआई की इस संभावना को आप कैसे देखती हैं? Well, I think AI is a kind of technology. तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, there's a fear. बीच में, you know, there was the fear of, 2000, turn of the century, what will happen? The computers will collapse. Nothing happened. I think AI is also created by human beings. At this point, it has, of course, reached a certain stage where it is very advanced. And depending on the input, you get very high quality output. Sometimes it is very difficult to differentiate whether it's written by humans or AI. AI might be better in some cases given the kind of input it gets. Interestingly, I was in a conference a couple of days ago in Bombay, and we had a lot of cyber experts, and they're all talking. So there was a unique experiment someone did where they got 2 AIs to start talking, and very soon they started talking in their own language, Ish language. So I think it is advancing at a very rapid pace. In Penguin, we do not use AI for our work. Currently, we still believe in human creativity and talent, so we don't use AIs for our covers, we don't use AIs for editing at the moment.
We have not also put our material, our text on open source, which can be used by AI for various things. So we are, I think, in the area of creativity, I think we are still a lot of faith in human talent. I see it as a tool. It does help in certain areas. In I think a lot of admin functions, whether you have to make minutes and notes, or maybe to some extent in marketing for press releases, it can be used. But so far, I think we see it as a tool and not as competition to human intellect. So that is where we are. I just wanted to say very briefly, just on what both of you were saying about the importance of writing and literature. I think it's even more important because in a country like ours, where we constantly talk about the huge number of young people in the country, I don't think it's possible to move forward unless you know your past, your history. So while in Penguin also I constantly think about the legacy and the future and how to balance that. You have to learn from history and you have to absorb it, know who you are, and then move forward, and then of course form your own ideas. And like Mr. Ponnani was also saying, the pen is mightier than the sword. A lot of, all of what we are talking about, a lot of these ideas, thoughts, ideologies, ways of life have come from writings through ages, in our country and the rest of the world. So literature is extremely important, and I think the younger generation should also understand that. And digital, of course, is great for short-term consumption, but nothing can replace books. Thank you so much. I am very grateful to the luminaries. और हमारा प्रयास रहा कि भारतीय साहित्य की रूपरेखा हम समझें. एक मानचित्र सामने आया. मानचित्र पौराणिक ग्रंथों पे भी ठहरा. मानचित्र के कुछ हिस्से एंशिएंट इंडिया पे भी गए. मानचित्र AI तक चला आया. तो भारतीय साहित्य की रूपरेखा बड़ी विस्तृत है. इसे समझने की ज़रूरत है. इसे समझने में साहित्य अकादमी जैसी संस्थाओं का, पब्लिशर्स का, इतिहासकारों का, हम सब की, और मुख्यतः पाठकों का, जो नए युवा पाठक, हमारे नए युवा दर्शक हैं, आप सबकी भूमिका बड़ी अहम रहेगी. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. आपका भी धन्यवाद. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबका आभार. May I now request Shri Rajesh Jha, editor Sansad TV, to kindly present a memento to our honored guest as a token of appreciation. Huge round of applause for him, please. Shri Dharmendra Sushant ji. Miss Millie Ashwarya. Dr. Kumud Sharma. Dr. Gautam Chaube, our moderator. संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।